you heard the Finance Minister giving a comprehensive analysis of the announcements that she made earlier in the day while presenting the Union Budget in Parliament for the year 23-24. The government calls it a budget for New India, with a particular focus on the poor, the middle class, also the villagers and the farmers of the country, who the Prime Minister often describes as the big force behind India's growth and development. So we'll continue to cover all the important aspects of the Union Budget on our continuous coverage on Sansad TV. Heading into a very short break. When we return, we'll talk about what the Union Budget offers to the agriculture sector with eminent panel of experts who will be joining us in the studio also virtually. So we'll be right back. Do stay with us. What is GDP? GDP, or Gross Domestic Product, is the total market value of all final goods and services produced in the country over a period of time, usually 1 year. Increase in GDP or GDP growth rate indicates the overall health of the economy. आज बात करेंगे भारत के संसद के बारे में। आमतौर पर भारतीय संसद के 3 सत्र होते हैं। सरकार के पास संसद का सत्र बुलाने का अधिकार है। सरकार जब सत्र बुलाना चाहती है तब राष्ट्रपति के पास अनुशंसा पत्र भेजकर सत्र बुलाने की स्वीकृति हासिल करती है। संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद सत्र बुलाने का प्रावधान है। 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होता है। आमतौर पर भारतीय संसद के 3 सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र साल का सबसे पहला सत्र बजट सत्र कहलाता है, जो आमतौर पर जनवरी महीने के आखिरी सप्ताह में शुरू होकर अप्रैल तक चलता है। बजट सत्र 2 भागों में चलता है। आमतौर पर पहला भाग बजट पेश करने का और दूसरा भाग उस पर चर्चा करने के लिए होता है। बीच का अंतराल इसलिए होता है ताकि सांसद, संसदीय समितियां बजट के प्रावधानों को समझ सकें और उसके बारे में अगले भाग में चर्चा कर सकें। मानसून सत्र दूसरा सत्र 3 सप्ताह का मानसून सत्र है, जो आमतौर पर जुलाई माह में शुरू होता है और अगस्त में खत्म होता है। शीतकालीन सत्र यानी तीसरे सत्र का आयोजन नवंबर से दिसंबर तक किया जाता है। ये सत्र सबसे कम दिनों का होता है। खास बात यह है कि इन तीनों सत्रों के अलावा किसी भी आपातकाल या किसी खास मौके पर विशेष सत्र बुलाया जाता है। नमस्कार, आपका स्वागत है बजट 2023 में। और हम बात करेंगे इस सेगमेंट में कृषि क्षेत्र की, और बात करेंगे कि सरकार ने किसानों को क्या दिया है, कर्ज कितना दिया है, बीज को लेकर के क्या स्ट्रेटेजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या स्ट्रेटेजी है, भू मैपिंग को लेकर के क्या स्ट्रेटेजी है, सभी पहलुओं पर बात करेंगे। मिलेट्स ईयर है ये 2023, उसको लेकर भी बात करेंगे कि उसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी है, और समझने की कोशिश करेंगे कि किसान की गति और किसान की दशा और दिशा कैसी होगी। Absolutely. So the kind of trust that this government has provided to the agricultural sector, which is very, very important for India's growth. So we'll try and understand from experts from the domain who are joining us in the studio. Delighted to have with us Dr. Ashok Vishendas, Professor Applied Economics, IIPA. Dr. Vishendas, thank you for your time. Welcome to Sansad TV. Mr. Pranjal Sharma, contributing editor, Business World. And we also have with us Mr. Yaduvendra Mathur, former Special Secretary, Niti Aayog. Thank you, gentlemen, for joining us on the program today. The first question to you, Dr. Vishendas. What is the kind of trust that you see the government having providing to the agriculture sector? This union budget, they are describing as an inclusive one, a forward-looking one, and also a sustainable one. So from all 3 aspects, how important has the agriculture sector been?
this budget is very unique in the sense that it is not only inclusive but also prosperity has been taken care of. So having said that, let us understand that agriculture is the lifeblood of Indian economy, and no edifice can stand unless its foundation is strong. So agriculture being the foundation of the economy, because a primary sector, secondary and tertiary sectors are there. So it is said that नींव के पत्थर कम दिखते हैं लेकिन इमारत उसी से बुलंद है. तो हमारे हिसाब से एग्रीकल्चर है वो नींव है इमारत की. And the government has recognized this. The present government has recognized and given lot of emphasis on agriculture. They have given a organic farming, the green growth, that is very important, and then inclusive growth and farmering, upskilling the skills of unskilled worker. Let us also keep in the mind that about 44.5% of country's workforce is engaged in agriculture, yet they give 18% to the GDP. In contrast, non-agriculture workforce about 54% gives 82%. So this data clearly shows the productivity, the labor productivity of agriculture is low compared to non-agriculture. Government has recognized this and has given boost to this. They have given International Year of Millet that will go, that is called Shri Anna. Now, India is the largest producer of millet in the world and second largest exporter of millet. And this, once the FAO of the United Nations have declared International Year of Millet during 2023, obviously the demand will be spur, and the cost of production of these crops is very low and the demand will rise. That means prices will rise. Therefore, the profitability of the farmers will rise. And one more thing, these millet in any part of the country can withstand the water stress, and therefore it is a win-win situation, because you in any case this country, our country is water stress country. Water tables are going low, and therefore this is the solution. Right. And the Honorable Prime Minister said any dignity that comes to India will be offered at least 1 or 2 dishes of millet, and that will definitely spur the demand for millet. So farmer will be benefited. Then organic farming, there is a lot of demand outside India, and this will also increase export demand of our agriculture commodity. So the farmers are likely to get better prices, their productivity will increase. Then startup in the agriculture has been given boost. Then the 500 plants for waste to wealth that has been announced. So that will also create lot of wealth in the agriculture sector. Waste will be taken care of, organic farming, green growth. जी इसी के साथ हम आपको थोड़ा और आगे ले चलते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आम बजट को किसानों के हित में बताया है। उन्होंने कहा कि इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। देश की अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है। केंद्रीय कृषि मंत्री से बात की है संसद टीवी की संवाददाता कृति मिश्रा ने। नमस्कार, हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले बजट की बात की जाए, क्या बड़ी बातें, कौन से बड़े हाइलाइट्स, क्या बड़े टेकअवेज आपके लिए? आज केंद्र सरकार का बजट लोकसभा में वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया। मैं समझता हूँ यह बजट बहुत ऐतिहासिक है और सभी वर्गों का कल्याण इस बजट में निहित है। सभी क्षेत्रों का, सभी वर्गों का इस बजट में ध्यान रखा गया है। और विशेष रूप से अगर हम देखें तो कृषि की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इस बार 1,15,000 करोड़ से अधिक कृषि मंत्रालय का बजट है। कृषि शिक्षा के लिए 9,000 करोड़ रुपया, तो लगभग कुल मिला के 1,25,000 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर पे प्रावधान किया है, जो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा है।
कृषि के क्षेत्र में हम सब ये महसूस करते हैं कि कृषि को उन्नत कृषि में तब्दील करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसान कर सके और किसान तक टेक्नोलॉजी पहुंच सके, इसके लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक इसी प्रकार से आप सब ने पिछले बार भी अनुभव किया होगा, एग्रीकल्चर को डिजिटल एग्रीकल्चर के रूप में तब्दील करने की दृष्टि से हम लोग काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले बार इस पर 70 करोड़ रुपया ही था। लेकिन डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को मिशन के रूप में स्वीकार करके सरकार ने 450 करोड़ रुपया इसके लिए प्रावधान किया है। इससे आने वाले कल में कृषि के क्षेत्र में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ठीक प्रकार से क्रॉप का आकलन किया जा सकेगा, फसल बीमा जैसे योजनाओं का लाभ आम किसान को मिल सकेगा और किसान को अनेक प्रकार की एडवाइज डिजिटलाइजेशन होने के बाद केंद्र सरकार और अन्य संबंधित संस्थाएं दे सकेंगी। इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। So digitization clearly, Ramveer, has been remarkable in the budget that the finance minister presented today, and not just in the agriculture sector, but across sectors, the kind of thrust, the usage of digital technologies. And that I'll take the question to Mr. Pranjal Sharma. In terms of understanding how the government intends to expand digital technologies in agriculture and related sectors, what do you think are the action plans that the finance minister spoke about, and in the times to come, not just in this financial year, but because it lays out a roadmap for the next 25 years, in a way giving out a blueprint for India at 100. So in that aspect, how do you see technology now playing a key role in boosting agricultural sector in India? So, this is a great recognition by the government, but if I look at it, this started some years ago. Even without a strong intervention from the government, there was always a support, and the budget has actually accelerated and deepened it by creating an accelerator fund. But if you look at it, a policy on drones for farmers was launched by the Prime Minister last year. This is completely, unthinkable a few years ago, that drones could be used by farmers, because farmers traditionally have been seen to be people who don't understand technology, who don't understand information. But from basic issues of the entire value chain, from planting the seeds to managing the crop to managing the land to making sure that their products reach safely to the final market, there is a huge role that technology can play. And I think the fact that the government is encouraging startups to collaborate with farmers is one of the most brilliant ideas. Simply because government also realizes that all knowledge does not rest within itself. It is bringing smart minds, creating the kind of seed fund which is required to start an idea, and there could be a million ways to do it. How to identify the right seeds, how to ensure what is the best time to do it, how to measure the weather. So there is a concept of a automated weather station. So that automated weather station is like a pole which is on the ground. The pole itself has sensors which can tell the moisture of the ground and whether it's the right time or not. So there are so many things that this accelerator fund can do with digital technologies and with startups. कई जगह हमने देखा भी कि बहुत सारे खेतों के अंदर इस तरह का एस्टेब्लिशमेंट किया और ये पता लग जाता है कि खेत में कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर फसल जो है सूखी हुई है, जहाँ पर स्पेशली पानी की ज़रूरत है, वहाँ या वहाँ पर जो पौधे हैं उनका न्यूट्रिशन जो है वो कम है। तो ये सब एक सेंसिंग तो वो सब चीज़ें शुरू तो हुई हैं और पहल हुई है, तो ये अच्छा ही है। प्रांजल, हम जो हैं वन बाय वन थोड़ा सा हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम सबसे पहली बात करें, किसानों को जो कर्ज है वो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया और भी बढ़ाया गया है, 20 लाख करोड़ रुपया उसे किया गया है। जब ये बजट भाषण चल रहा था तभी हमने ऐसे जागरूक किसानों से भी साथ के साथ एक रिव्यू लेने की कोशिश की, तो उनका ये कहना था कि भाई जो लोन है, कई बार उस तरह के इनोवेशन या उस तरह के परफेक्ट मॉडल हमारे सामने नहीं आते हैं कि अगर हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो वो सक्सेस होगा ही। हमने उत्तर प्रदेश में देखा, सपा सरकार के समय में वहाँ 1-1 करोड़ रुपए के लोन बांटे गए, लोगों ने डेयरी स्टार्टअप शुरू किए और सब के सब फेल हो गए करीब करीब, क्योंकि फोडर बहुत महंगा है, फीड बहुत महंगा है और उसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो मैनेज नहीं हो पाई।
लेकिन हमें झांसी के साकिन के एक किसान ने बताया, जिन्हें डॉक्टर ऑफ फार्मर्स की उपाधि भी मिली है। उन्होंने कहा कि अगर फेंसिंग, गाय, उसी के साथ कनेक्ट गोबर गैस प्लांट, स्मार्ट इरिगेशन के साथ अगर स्प्रिंकलर उसके साथ देते हैं, साथ में 25% लैंड में आप पेड़ हॉर्टिकल्चर देते हैं, तो इससे जो खाद डायरेक्ट जाती है, ऑटोमेशन के साथ ये डेयरी प्लांट अगर चलता है, तो निश्चित तौर पर 1 एकड़ में भी आप अच्छी आमदनी ले सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो मॉडल हैं उन पर कहीं ना कहीं काम करने की ज़रूरत है और उनको समझने की ज़रूरत है कि ये एकदम, जिसको कहते हैं ना कि ठीक है ये 2 और 2 4 ही होगा, वहाँ पर शायद कहीं ना कहीं कुछ लैक हो जा रहा है। देखिए, भूमि से जुड़े जो उपाय हैं वो सबसे अच्छे रहते हैं। बिल्कुल। और आपने जिस तरह का उदाहरण दिया वो बहुत ही अच्छा उदाहरण है, लेकिन कमी ये है कि इस तरह के उदाहरण एक ही क्षेत्र में रह जाते हैं, उससे बाहर नहीं जा पाते। तो एक ये भी हमको एक व्यवस्था चाहिए जिससे जो सफल हो चुके हैं इस तरह के मॉडल, वो पूरे देश में किस तरह से उनको लागू किया जाए। आपने ऋण की बात की, अब ऋण की बताएं। जैसे आपने जो शब्द जो प्रयोग किया उसको मैं पकड़ना चाहता हूँ कि कर्ज और ऋण को बांटा गया। अब जब मानसिकता है कि मुझे कुछ मिल रहा है और झोली में लेके मुझे उसको बंद करके निकल जाना है, तो फिर मैं उसको ऋण नहीं मानूंगा। किसानों को इस तरह से प्रेरित करना चाहिए कि आपको जो ऋण मिल रहा है वो आपके कार्य को बेहतर और अच्छा करने के लिए मिल रहा है। आप उसको इस तरह से उपयोग करें जिससे आपकी उपज ज़्यादा अच्छी हो। एक राजनीतिक व्यवस्था और सोच बन गई थी कि आप दे दीजिए किसी तरह से उनको खुश करने के लिए और बाद में उसको माफ कर दीजिए। बिल्कुल। तो इसलिए उनका उपयोग भी ठीक से नहीं हुआ। डॉक्टर दास, एक बात और आई कि केसीसी के तहत भी जो अभी ये सारा लोन दिया जाता है, मैं नाबार्ड के एक अधिकारी से बात कर रहा था इसी सिलसिले में। किसानों के सामने एक बड़ी समस्या ये है कि वो केसीसी से मान लिया 3 लाख रुपया लेता है, 1 साल पूरा होने के बाद में उसे एक्यूरेट 3 लाख रुपए को फिर मैनेजर को देना होता है और फिर 1 घंटे बाद वापस वो लोन ले सकता है। किसान के पास एक ही दिन 3 लाख रुपए का इंतजाम नहीं होता है या 5 लाख का इंतजाम नहीं होता है और वो नहीं दे पाता है। इस चक्कर में एक ही दिन में वो 20% का ब्याज उसे देना पड़ता है। नाबार्ड के अधिकारी ने कहा कि ये आर्टिकल हमने बैंकों को दिया था 15-16 साल पहले और इसे रिलुक करने की ज़रूरत है। लेकिन उसमें मतलब ऐसी ये दिलचस्प बात है कि जहां पर इंटरेस्ट के अलावा बैंक जो है पूरा का पूरा पैसा वापस लेता है, फिर दोबारा 1 घंटे के बाद उसे शुरू करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये सिर्फ किसानों के साथ होता है। देखिए, ऐसा है, इसमें व्यवस्था में जो केसीसी का आपने जिक्र किया उसमें व्यवस्था है कि किसान अपनी सहूलियत के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद पूरा दे दे। वो अगर धीरे धीरे, जैसे कोई भी फसल है 3 महीने 4 महीने की है, आजकल तो शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप आ गई हैं, तो जैसे उनकी कटाई हो गई उससे मैं थोड़ा दे दिया, तो वो फेस्ड मैनर में कुछ ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा कर्ज जो है वो 1 साल के अंत में सारे का सारा लौटाना है। वो अपनी सहूलियत 3-3 महीने के अंतर में, 2 महीने के अंतर में वो दे सकता है, तो उस पर बोझ नहीं होगा। लेकिन किसान की क्या सोच है, जहां पर गन्ना जो है साल में 1 ही बार आना है। Sure, we'll continue with the discussion, Ramveer, in just a while. Let me also bring in Mr. Yadavendra Mathur, get his perspective on what he thinks about the budget and the focus that the agricultural sector has seen from the Finance Minister. Mr. Mathur, if I'm audible to you, what is the kind of focus that you see the budget this time bringing to the supply and input side of the agricultural value chain? This, of course, we've spoken about how important it is. So what is your take on these important aspects, sir? Well, thank you. I think this is a excellent focus that this budget has brought back, and it talks about the agri-entrepreneur. So, जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच थी, एक फार्मर और एक किसान क्रेडिट वाली एक पुरानी एक सोच से हटके ये जो एक्सेलरेटर फंड, तो जो नए स्टार्टअप्स हैं वो एग्री स्टार्टअप्स की भी संख्या देश में विगत 3 सालों में बहुत सारे एग्री स्टार्टअप्स आ गए हैं और वो विजिबल नहीं है, हमको दिखते नहीं हैं, लेकिन आप मानिए मेरी बात के इतना ज्यादा पोटेंशियल है और ये बिल्कुल सही समय था कि ये एक्सेलरेटर फंड आ जाए। और जिस तरह से जो किसान क्रेडिट का जो एक और डोज, एक अच्छा हेल्दी डोज किसान क्रेडिट के लिए आएगा, उसी से आप देखें कि स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो वेयर हाउसेज हैं उस पर जोर दिया गया है। तो जो फार्मर है वो एक ट्रेडिशनल फार्मर से हटके
और एक बिजनेसमैन फार्मर उभरे, और जो नई पीढ़ी है वो सब डिजिटल आर्किटेक्चर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन और पेमेंट्स के लिए पूरा क्रिएट हो गया है, वो फार्मर को भी अब उपलब्ध हो कि वो एक ग्लोबल वैल्यू चेन में आके जुड़े। तो मैं समझता हूं जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एग्री एंटरप्रेन्योर को अब अवेलेबल होगा, वो एक रूपांतरण ला सकता है, वो ग्लोबल मार्केट से अपने आप को टैप कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो रेलवे का हो, चाहे रोड्स का हो, और जो इंडस्ट्रियल हब्स बन रहे हैं वो एग्री कमोडिटीज ग्लोबल मार्केट्स में जाएं। आई थिंक वो एक बहुत सोचा समझा, और जैसा अमृतकाल का ये पहला बजट है, तो ये एक नए सोच से आया है कि जहां शहरीकरण बढ़ेगा तो भी आदमी शहर में रहेगा, लेकिन वो व्यवसाय करने के लिए गांव में जाएगा। बिल्कुल। सो जो माइग्रेशन होगा वो टैलेंट और कैपिटल का एग्री एरियाज में जाके एक बिजनेस के रूप में एग्रीकल्चर को वो करे। मेरे ख्याल से ये सोच इस बजट के एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड। A related question, Mr. Sharma. Over the years, we've seen the government has constantly tried to bridge the gap between the rural and urban sectors. And as Mr. Mathur said, as urbanization increases, the focus should not, move away also. Do you see this budget also continuing with that kind of effort? So the finance minister building up on the government's efforts over the last 8 years to bridge that divide that we have been talking about? There is the macroeconomic structure is that the number of people working in agriculture sector has to reduce. There are too many people dependent on agriculture for direct living, and many of them are, not getting the dues that they should. They are all underpaid, they are underemployed, and therefore we have to make that effort that agriculture productivity and yields improve, while the people who are no longer required in agriculture are skilled to do other jobs. So that is the bridge between making sure that the gap is reduced. But most importantly, you also have to ensure that these people who are exiting agriculture remain in the extension services, agriculture related services. They don't have to work in the farm, but they can work in the logistics, they can work in the food processing area. So several such solutions are being looked at, and that's the way ahead for us. बिल्कुल। डॉक्टर दास, एक बात और भी जो कही गई है वो कॉपरेटिव्स को लेकर कही गई है। करीब 67,000 कॉपरेटिव्स जो हैं उनका नेशनल डेटा सेंटर बनाने की भी बात कही गई है। हनुमानगढ़ से एक किसान है शंकरलाल सीवर, उन्होंने इस विषय को लेकर के अपना नज़रिया रखा। उन्होंने कहा कि करीब करीब पंचायतों में सोसाइटीज़ हैं, लेकिन वो वर्किंग कंडीशन में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो प्रोड्यूसर सोसाइटी है एक तरह से, चूंकि किसान प्रोड्यूसर है, एफपीओ, हाँ, लेकिन शहर में जो लोग कंज्यूमर हैं, अगर इसी तरह से कंज्यूमर सोसाइटीज़ भी बनाई जाएं और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सोसाइटीज़ के बीच में सरकार, गवर्नमेंट एक रेगुलेटरी का काम करे, तो ये एक D2C का एक बेहतरीन मॉडल हो सकता है। देखिए, ऐसा है कि जो एग्रीकल्चर इज ए प्राइवेट इंटरप्राइज, तो मैं नहीं समझता कि सरकार को हर चीज़ में हस्तक्षेप करना चाहिए। एफपीओ है जो फार्मर प्रोड्यूसर, उसमें देखिए हमें छोटे छोटे किसानों की जो जोत का आकार है वो, अगर आप कह रहे हैं कि एफपीओ खुद इस तरह की पहल कर सकते हैं। हाँ, एफपीओ एग्रीगेशन का है, कोऑपरेटिव मंत्रालय अलग बन गया है, अगर वो संगठित हो जाएं और वो सप्लाई करें। अब देखिए, अगर आनंद जो अमूल मिल्क था, उसमें फार्मर, उसमें कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है, तब भी वो आगे बढ़ गया। वहाँ उसमें जो कंज्यूमर है उनकी आवश्यकता नहीं है कि वो एक अलग से अपना ग्रुप बना लें, लेकिन जो प्रोड्यूसर है, क्योंकि वहाँ पे जो समस्या है कि कैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, कैसे आपको कैसे कीमत मिलेगी, तो वो मुख्य मुद्दा है अर्थशास्त्र में। लेकिन कंज्यूमर तो भले बंटे हैं या साथ है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता भी नहीं है। और मेरा ये है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो वो अगर गवर्नमेंट का जो फिलॉसफी है वो यही है कि मिनिमम गवर्नमेंट, तो उसको उस फिलॉसफी के, और ये पिछले 8 सालों में काफी कारगर सिद्ध हुई है, तो उसको हम फिर रिवर्स गियर में क्यों डालें, और उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो फार्मर संगठित हों, फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले न मिले तब भी वो है। अब अमूल का देख लीजिए, जो दूध के प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत खुशहाल हैं,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको तो लेकिन ये स्थिति भी आनंद में या गुजरात में थोड़ा ज्यादा ठीक होती है, लेकिन वही अमूल जब यहाँ बाकी जगह वो स्थिति उस तरह से नहीं, लेकिन उसमें उनको डिविडेंड उस तरह से नहीं उतना मिल पाता है। नहीं वो, लेकिन वो उसको संगठित तरीके से कभी आजमाया ही नहीं गया है। बिल्कुल, उसको समय ही नहीं दिया गया कि आप उसको ट्राई करिए, उसको टेस्ट करिए। प्रांजल, एक बात जो है, Ranveer, before we continue to talk about the agricultural sector, the kind of focus that the government has brought about, a very quick run through for our viewers who missed the presentation earlier in the day-to-day of the budget by the finance minister. And because we're talking about the agricultural sector, a quick listen in to what the finance minister talked about, the provisions and the announcements and the kind of layouts for the agriculture sector for the next financial year, as well as the vision of this government for the times to come as well. Listen in to the finance minister. Digital public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard and interoperable public good. This will enable inclusive farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm inputs, credit and insurance, help for crop estimation, market intelligence, and support for growth of agri-tech industry and startups. An agriculture accelerator fund. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri-startups by young entrepreneurs in rural areas. The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. Global hub for millets, which are Sri Anna. India is the forefront. India's at the forefront of popularizing millets, whose consumption furthers nutrition, food security, and welfare of farmers, said the Honorable Prime Minister. We are the largest producer and second largest exporter of Sri Anna in the world. We grow several types of Sri Anna, such as Sri Anna Jowar, Sri Anna Ragi, Sri Anna Bajra, Sri Anna Kutu, Ramdana, Kangni, Kutni, Kutki, Kodo, China, and Sama. These have a number of health benefits and have been an integral part of our food for centuries. I acknowledge with pride the huge service done by small farmers in contributing to the health of fellow citizens by growing these Sri Anna. Now, to make India a global hub for Sri Anna, the Indian Institute of Millet Research, ideally Indian Institute of the Sri Anna Research, Hyderabad, will be supported as the center of excellence for sharing best practices, research and technologies at the international level. बिल्कुल प्रांजल, हम यहाँ से बात को और आगे बढ़ा सकते हैं और वित्त मंत्री ने मिलेट्स को लेकर भी बात की है और उन्होंने ये भी बताया कि भारत का मिलेट्स को लेकर के क्या स्टेटस है पूरे वर्ल्ड वाइड। हम अगर 50 साल पहले जाएं तो गांव-गांव में मोटा अनाज ही खाया जा रहा था। कितना % उसको कंज्यूम कर रहे होंगे लोग, शायद 80% लोग उसको यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन अभी वो बहुत रेयर में हो गया। हम पंजाब में हम लोग गए तो मतलब दक्षिण भारत से तो दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, लेकिन पंजाब से भी एक्सपोर्ट हो सकता है, ये हमने अभी देखा। वहाँ संगरूर में लड़के इकट्ठा हुए, उन्होंने वहाँ पर बाकायदा उसका प्रोडक्शन शुरू किया और ऑस्ट्रेलिया वो 40 टन का पहला कंसाइनमेंट भेज रहे हैं। तो उनका लेकिन एक समस्या थी कि भाई ये बताइए कि ये ख़त्म क्यों हुआ। ख़त्म इसलिए हुआ कि वो चावल और गेहूं के साथ compete नहीं कर पा रहा है, प्रोडक्शन कम होता है, रेट जो है उसको कोई सपोर्ट प्राइस या कोई उस तरह की सपोर्ट नहीं थी जैसा गेहूं या चावल को। आपको लगता है कि ये जो मिलेट ईयर मनाया जा रहा है, इसके बहाने फिर से हमारा जो श्री अन्न है, उसको आदि अन्न भी कहते हैं, मूल अनाज भी कहते हैं,
वो फिर से रिवाइव हो सकेंगे? इसकी जड़ क्या है, आपको याद दिलाते हैं। जड़ ये है, जब ब्रिटिश राज था उस समय उनको ये सब अन्न तो अच्छे नहीं लगते थे, उनको सिर्फ गेहूं पता था, तो उन्होंने गेहूं को बढ़ावा दिया। और दूसरा, ये जो अन्न थे रागी, ज्वार, बाजरा, उनको निम्न श्रेणी में रख दिया। उससे क्या हुआ, समाज में कुछ सालों में ऐसी प्रथा बन गई कि ये तो सिर्फ गरीब लोग खाते हैं और जो ऊंचे स्तर के लोग हैं वो नहीं खाते। पहली बात ये से ये एक मानसिकता बन गई। आज बहरहाल उल्टा है, क्योंकि इनको आप देश विदेश में जाएं तो सुपर फूड नाम से आप कुछ भी बेच सकते हैं। लेकिन दूसरा बड़ा कारण ये था कि जो हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसमें इनको नहीं डाला गया और इसमें सिर्फ गेहूं और चावल का वितरण किया गया। तीसरा कारण इसका ये है कि जिस तरह की ये अन्न है ये ज़्यादा अधिक समय तक रह नहीं सकते, तो उनको आप कई हफ्तों, कई महीने आप कहीं स्टोरेज में नहीं रख सकते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए इनका उपाय ये है कि अगर इसको बढ़ावा देना है तो हमको तुरंत या तो इस तरह की प्रणाली बनानी पड़ेगी जिससे इनको या तो कोल्ड चेन के थ्रू हम इसको पूरी तरह से इसका वितरण करें, या जहां ये उगता है उसी के आसपास प्रोसेस करके फिर उसको आगे बाजार में लाएं। अगर इस तरह के कदम उठाए जाएं तो जो पूरा मिलेट्स का कैंपेन है वो सफल हो जाएगा। So, you know, with India's efforts, Mr. Mathur, 2023 has been declared as the International Year of Millets, and a number of programs have also been observed in regard to that. But the question now is the vision of the government to make India the global hub for millets. So what is the action plan? What is the way forward if you want India to become the global hub for millets? Yeah, actually, it's a good initiative that resulted in the UN adopting 2021 as the 23 as the International Year of Millets. But the bottom line is what the earlier panelists said about the perception. So I think something has to happen that the average Indian household actually adopts at least once a week, twice a week. They adopt a millet meal, and we encourage even in our offices. I remember in Niti Aayog, we had actually taken the initiative to only serve millet biscuits and other stuff in the Niti Aayog canteen. You know, so these initiatives taken 3-4 years ago, and actually the Food Ministry in Delhi sent out a recommendatory circular to all the canteens in the central government ministries that please introduce millet and these biscuits in the normal office fare. So I think the perception has to change. We need, as average, as an average household, we need to dispel this vision or this something that it's a गरीब आदमी का खाना है, वो dispel करें. इंडिया में खुद consumption जब बढ़ेगा तो global consumption export बढ़ेगा. It is not a very large chunk of the GDP, but it really signals that we move towards a sustainable agriculture. So the whole sustainability of the Indian economy, our whole lifestyle, so this is a part of the larger campaign that India is leading at the G20. It is not that we only talk about it, but we actually adopt and go back to our roots, which these millets and these are our staple. I think wheat was imported into India. It was not a indigenous crop of India. But I think the larger message is there is money to be made in agriculture. So the business sector, the startups, they will get wise to it. They will develop new brands and they will work this golden crop into this healthy crop, into the yoga, the lifestyle patterns. I think there is a message that India is giving to the world by signaling this strong support for the millets. That is a larger thing I see in the budget. It is not the nitty-gritties of how much money we will make. Right. And it aligns with India's vision for the G20 presidency, wherein we talk about sustainable growth, sharing the best practices, Dr. Bishan Das, with other like-minded countries. And for that, the finance minister announced the Indian Institute of Millet Research to be set up in Hyderabad. No, it already exists. Let me add two things. One is we have to create awareness about this millet, the taste apart. There are proven medical reports and research which shows that it is very good for health for two reasons. One, for instance, ragi is very good for orthopedic ailment. And second, for those who are suffering from diabetes, that helps a lot.
for eating this millet. So we have to propagate that this has a medicinal value besides it gives the calorie value. So these two things, if we say, people are now having the awareness. If they are told, yeah, these are the two advantages, then they will definitely demand. So once the demand is generated, farmers will get a lot. Now, on coming to Indian Institute of Millet, which is in Hyderabad, that already exists. All the Honorable FM said that we'll convert it into the center of excellence. So they will be much more equipped to do the more research and then make it as a center of excellence. And that will again create, if such an institution is boosted and then given a lot of impetus and the whatever is necessary to make it to higher level, I think that will stand out in the agriculture sector. हमने अभी पटियाला में देखा, मिलेट से इलाज करने के लिए आयुर्वेद के, होम्योपैथ के और कई सब डॉक्टर मिलकर के वो मिलेट से मिलेट उसको मरीजों को वो दे रहे हैं, हो जाता है। और उन्होंने बताया कि ये पर्टिकुलर ये लेना है। मैसूर में तो एक डॉक्टर स्पेशली इस पर काम कर रहे हैं। रागी तो बहुत, रागी कर्नाटका इज वन स्टेट विच इज अबाउट वेरी हाई परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन रागी इज प्रोड्यूस इन वन स्टेट, कर्नाटका, and then it is very popular rate. So my as a economist, supply creates its own demand. If you create if you produce and supply it, there will be a demand. And because of this, at India's initiative, the UN has declared it. I think it means a lot. And to spur that demand, I think you're right that we'll have to change the mindset first within the country before we sell the idea abroad. जब भारत की संसद में मिलेट परोसा जाता है, जब अभी चंडीगढ़ की विधानसभा में देखा, वहां पर मिलेट भोज दिया गया, वहां इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है उनको परोसा गया, उनको मिलेट दिया गया, उन्होंने सुना ही नहीं होगा, बट उनको खाया गया, तो वो उनको भी मेजबान का रोल अपनाना है। बिल्कुल, तो वो उनको बताया गया उसके क्या गुण हैं, उसके क्या फायदे हैं। कठिनाइयां ये हैं, वहां पंजाब में हमें बताया कुछ लोगों ने कि 25,000 परिवारों में पंजाब में मिलेट यूज होने लगा है। But I think that storage aspect that you spoke about is one of the challenges. See, right? Millets cannot be stored for long, and distribution and therefore the cost is very important. See, you cannot say just because it was served here, everybody should have it. In the end, it should also fit your budget. Clearly. So, if I have a choice between an expensive kilo of ragi, so I will not take that. बिल्कुल, हम थोड़ा आगे चलें। हॉर्टिकल्चर को लेकर भी इस बजट में सरकार ने कहा है, और हॉर्टिकल्चर पर बाकायदा 2,200 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रावधान भी किया है। एक किसान ने ये कहा कि अगर नीति में ये ले आया जाए कि जिन किसानों को सरकार प्रोत्साहन दे रही है, अगर उनको ये कहे कि भाई आप अपनी लैंड पर 25% पर आप फलदार पेड़ भी लगाइए, तो और कहीं ना कहीं उसमें किसानों को ये प्रिविलेज देना चाहिए कि आप देखते हैं जैसे ही जुलाई आती है तो गांव-गांव में पेड़ तो जाते हैं, परंतु वो कौन से पेड़ जाते हैं, वो डिमांड वाले जो किसानों के जो पेड़ चाहिए वही उनको मिले, वही वैरायटी उनको मिले, तो जाहिर तौर पर शायद ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। देखिए, मिक्स क्रॉप यूज़ का प्रचलन तो है, लेकिन उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। दूसरा, इन सबको जोड़ते हुए एक जो मुद्दा उठाया गया, जो वित्त मंत्री ने उठाया, वो डेटा बेस्ड एग्रीकल्चर। मतलब आप जो भी करें वो जानकारी से करें। हाँ। आपने एक इलाके का पेड़ दूसरे इलाके में भेज दिया, एक इलाके के लिए जो अच्छा है वो आप बाहर भेज दिया। अब देखिए, हम पंजाब में जैसे ये धान उगाया जा रहा है, चावल उगाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे तो पानी की कमी है, तो वहाँ क्यों उगाया जा रहा है? मिलेट का फायदा ये है कि आप उसको कम पानी की जगह में भी उगा सकते हैं। तो इसलिए जो भी आप कह रहे हैं, हॉर्टिकल्चर को भी अगर बढ़ावा देना है तो सोच समझ के देना पड़ेगा, ये नहीं कि अंधाधुन आंखें बंद करके कर दिया जाए। इसलिए मेरे विचार से राज्य सरकारों का भी इसमें काफी योगदान रहना चाहिए। मैं इसमें 1-2 पॉइंट और आपके देखिए, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, हॉर्टिकल्चर है, हमें ये समझना होगा कि हमारी जो पर व्यक्ति की जो आय है, पर कैपिटा इनकम इज राइजिंग। तो जब इनकम राइज होती है, और उसमें क्या है कि जो सीरियल्स हैं और पल्सेस से, तो जो लोगों का जो कंजप्शन है वो हाई वैल्यू की तरफ जाता है। बिल्कुल। तो एक तो ये इसका मतलब है कि ये फ्रूट्स वेजिटेबल उसकी डिमांड बढ़ रही है, दैट इज पॉइंट 1। सेकंड पॉइंट ये है, हमें ये भी देखना कि जो हमारी ज़मीन है उसकी कीमतें इतनी अधिक हो रही हैं, तो जो हॉर्टिकल्चर का जो प्रोडक्शन है, तो 12% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड
devoted to fruits and vegetable and horticulture that gives 24% of our value in the GDP of agri GDP। और इसके विपरीत जो 42% हमारे सीरियल और मेज का है एरिया, वो सिर्फ हमें 24% वैल्यू में देता है। कितना कंट्रास्ट है। तो हमें लैंड को भी रेशनलाइज करना, उसका ऑप्टिमल एंड रेशनल यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड को भी हमें ध्यान रखना है। तो ये जो है ना, ये हाई वैल्यू है, कम वॉल्यूम में आ जाता है। और क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है, और वो इस आंकड़े से कि आज से 5-6 साल पहले हमारा फ्रूट्स जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन था वो टोटल फूड ग्रेन से काफी कम था। बिल्कुल। अब क्या है, पिछले साल जो कृषि मंत्रालय ने आंकड़े रिलीज किए हैं, उसमें जो हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन है वो 345 मिलियन टन पहुंच गया, जबकि फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है 315-316 मिलियन टन के आसपास, मतलब उसको ऊपर सरपास कर गया। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य उसकी डिमांड बढ़ रही है, बट हमें उसमें लोगों की जेब में पैसा है इसलिए फल खा रहे हैं, और वो कम जमीन पे ज्यादा वैल्यू दे देता है इसका, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू सीरियल्स। ये है, तो इसको हमें और बढ़ावा देना। बट उसमें एक ही समस्या है, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, जल्दी खराब तो रिस्क भी ज्यादा है, थोड़ा सा बढ़ा है। तो प्रोसेसिंग है, स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, और वो हमारे माननीय वित्त मंत्री ने कहा भी है कि हम छोटी छोटी जगह पे हम इसका स्टोरेज की भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि फार्मर को, जो किसानों को, हमें दो ही चीजें चाहिए। मैंने तो कम से कम 60,000 किसानों से फेस टू फेस बात की है, तो उनको दो ही चीजें चाहिए। क्या चाहिए उनको? उनकी कीमत मिलनी चाहिए और उनको बाजार मिलना चाहिए। दे नीड ओनली टू थिंग्स, गेटिंग द मार्केट्स राइट एंड गेटिंग द प्राइसेस राइट। अगर ये हम सुनिश्चित कर दें तो उनको कुछ और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, मतलब यहाँ का जो किसान है वो बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है, और वो कोविड ने दिखा भी दिया। बिल्कुल। सिर्फ कृषि ऐसा क्षेत्र था जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ हुई, बिल्कुल, बाकी सब में नेगेटिव हुई। बिल्कुल। प्रांजल, एक बात और हुई है, वो सीड को लेकर हुई है। और सीड को लेकर के अगर हम सीड के मार्केट की बात करें तो 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का सीड मार्केट जो है वो भारत में है। लेकिन भारत में सीड सॉवरेनिटी की भी बात होने लगी है साथ साथ, कि आप जो है एक संकर बीज दे देते हैं, दूसरी बार उसके अंदर जो है रीजर्मिनेशन की उसके अंदर कैपेसिटी ही नहीं होती है। ऐसे में लोग कहते हैं कि कहीं कुछ लोग जो हैं दुनिया के, वो बीज पर कब्जा तो नहीं कर लेंगे। और ये बात तब ज़्यादा लगती है किसान को जब बीज के रेट जो हैं 1 किलो के 1 लाख रुपया केजी हैं, 30,000 रुपया केजी हैं, 50,000 रुपया केजी हैं। अगर मिर्च का बीज लेंगे तो आपको हो सकता है लाख रुपया केजी के आसपास मिलेगा। आज तरबूज का बीज लेंगे आप तो 30,000 40,000 रुपया पर केजी मिलेगा। तो ये एक समस्या है। इसलिए भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि भी देसी बीजों को बचाओ, उनका संवर्धन करो। तो बीज को बचाना यानी बीज केंद्र या बीज बैंक गांव-गांव में शुरू करना और उनका अपग्रेडेशन कैसे हो, उसका साइंस, उसका कला, ये भी समझना और उसको प्रमोट करना, शायद ये भी कोई एक जरूरी चीज है इस बीच। बहुत आवश्यक है। अगर हम आर्थिक सुरक्षा की बात करें, हाँ, तो इसमें कृषि और बीज बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जिस तरह की बीजों की आपने बात की, इसको इंग्लिश में टर्मिनेटर सीड्स बोलते हैं। बिल्कुल। उसका कारण ये है कि इससे आपकी विदेशी कंपनियों पर निर्भरता बढ़ जाती है, खर्चा बढ़ जाता है। हाँ। और वो चाहे उसमें क्या डाले हमको पता ही नहीं है। जिस तरह से अगर मैं इसको कोविड वैक्सीन से जोड़ूं कि जो बायो वॉरफेयर हो रहा है, ये भी उसका एक आयाम है कि क्या आप किस तरह के बीज डालते हैं, उस बीज में किस तरह की कीड़े हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, वो आपको किस तरह की उपज देंगे, ये हमारे देश के लिए सही है, ये वो भी नहीं पता हो। इसलिए भारत को बीजों की सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है। लेकिन इस तरह के जो उपाय हैं, बातें काफ़ी समय से चल रही हैं, लेकिन इस पर कुछ अगर सुदृढ़ कदम उठाए जाएं तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। So, Dr. Krishnan Das, is the Atmanirbhar Clean Plant program that the finance minister announced one of the steps towards addressing this concern that Ramveer and Mr. Sharma just spoke about? Yes, देखिए, जो हमें एक तरह से आजकल क्या है कि लोगों को जागरूकता बढ़ रही है,
तो हमें ग्रीन ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी ज़रूरत है। कुछ हमारे भारत में, जैसे आप उत्तराखंड जाइए, सिक्किम में जाइए, सिक्किम तो 100% ऑर्गेनिक हो गया। इसका क्या मतलब है? वो ग्रीन है, वो जो केमिकल फर्टिलाइजर है और वो जो पेस्टिसाइड है केमिकल फ्री। बट एट द सेम टाइम आर देयर आल्सो लिमिटेशंस टू गोइंग टुवर्ड्स केमिकल फ्री ऑर्गेनिक फार्मिंग? ये है कि उसकी लिमिटेशन ये है कि शुरू में तो उसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम होती है, लेकिन आगे चल के क्योंकि जमीन मजबूत हो जाती है, जमीन मजबूत उसके बाद ठीक हो जाता है। लेकिन वो हमें थोड़ा ग्रेजुअल मैनर में करना है और कर भी रहे हैं ग्रेजुअल में। ऐसा नहीं, अब आप हमारे पड़ोसी देश है और श्रीलंका, वहाँ क्या हुआ, उसकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसका एक मुख्य कारण ये उन्होंने 0 से 100% करने की कोशिश की, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई। तो हमारा जो है ना, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है हमारे देश के, इतने मतलब मैं तो उनको कहता हूँ कोटि कोटि प्रणाम। हमारे किसान और हमारे कृषि वैज्ञानिक इतने सक्षम है कि वो हर चीज़ को अगर ग्रेजुअल मैनर में करेंगे तो बहुत ही और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने से आपको उसकी कीमत बहुत ज़्यादा मिलती है। तो उसको ग्रेडिंग करनी है और उसको प्रॉपर पैकेजिंग करके और जीआई टैग लगा के, क्योंकि एक और भी माननीय मंत्री जी ने कहा, वित्त मंत्री ने, कि वो जो आपके पास जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कही है, इसका मतलब आपको स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही फल, जैसे कई ऐसे, जैसे अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे नासिक के पास, तो वो ग्रेप नेट है, तो वो वहाँ पे ग्रेप ही होता है, वो स्पेशलाइज है। ऐसे अगर हम वाराणसी में जाएंगे तो वहाँ के कुछ आम हैं, वो पूरे विदेशों में बड़े मशहूर है। इस तरह के चाय है, दार्जिलिंग टी है, कांगड़ा टी है, तो इस तरह का वो जीआई जो टैग लग जाता है ना, उससे कीमत कई गुना बढ़ जाती है। Sure. Since you spoke about GI tag, this takes me to the other point, Mr. Mathur, of Unity malls. Now, this is a unique idea that the finance minister spoke about. She spoke about how it will give a platform for one district, one product, and for sale of products which have the GI tag. Tell us more about this unique initiative, the vision behind it, and how it can be taken forward. Yeah, thank you. I think the budget has, the transformative impact we are not able to very quickly appreciate. I think the digital infrastructure strengthening for the agri-entrepreneur is already been appreciated. We were talking about the seed companies. If you look at the stock exchange has responded, and all these seed companies which make commercial seed production companies, their stock prices have hit the upper circuit. That means though the fine print, we are not able to really fathom the availability of credit to the technology-oriented data analytics, precision farmer, that entrepreneur is going to really gain. So the time has come when the agri sector will not do well unless there is solid, robust data, and on the basis of that. So this is all very, this is transformative. I can tell. And I'm very happy that on your channel you are focusing on agri, and the signals that are already coming from the market appear that the industry is hungo. They're delighted with this availability of credit, but for tech-oriented startups. It is not the run-of-the-mill कि वो लोन ले लेगा और वो कुछ एक बिल्डिंग बना देगा and the money will go down. This is going to be all injected into these malls like a data exchange. The products will be, like GI tag. The traceability of the agri-produce is paramount importance. The export market will not respond unless we can show traceability. Right. So one of the transformative impacts that this budget will bring is it will bring that layer of tech players which will be working hand in gloves with these 63,000 cooperatives. See, the point that we are missing is 63,000 agri cooperatives have all been computerized. They've been all linked. This was a missing agenda which is addressed. So I think very exciting times are coming for the agri entrepreneur. Clearly, and this is going to drive India's growth story further. Time is, very, very less. We just have about 5 minutes. But one important area that Mr. Sharma I would like to touch upon, and on which social media has been going abuzz, is that Manrega allocation is the lowest in 4 years. Now, rural employment is one area that is often spoken about when we talk about agriculture and allied sectors. Does that raise concern about rural employment?
I think it's become a zero-sum game, because if there is too much of welfare where money is given to people for Manrega, it takes away the skilled labor required in the agricultural sector. So it's appearing that in India, it's not that we don't have enough labor in the country both for Manrega and for agriculture. So what we have seen is that there is also a crisis of labor in states like Punjab, and that's also led to the whole issue of crop burning, etc., because there's not enough labor. So if the allocation is going down, there must be a strong reason for it. But I feel that that itself is not a negative thing. If it releases labor for more productive activities, I think it's fine. I think that's the key issue. But I think I just want to quickly talk about the clean plant that you talked about. Issues of organic food, etc., digitalization are there. APEDA, for example, has a TraceNet platform which tracks how things are. But if we have to protect seeds, if we have to increase organic farming, I think it has to be far more centric to the government's policy making. I think it is coming there, but it needs far bigger push. बिल्कुल। डॉक्टर दास, एक बात और भी है जो हुई है आज के बजट में, वो भू मैपिंग को लेकर के हुई है कि 21 राज्यों में 70% काम करीब करीब पूरा हो चुका है। भू मैपिंग का तो ठीक है, लेकिन जब मैं पूछ रहा था उड़ीसा के एक किसान से, तो उसने कहा कि मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है, लेकिन वो मेरी 15 जगह पर बिखरी हुई है। ऐसी बिहार के एक किसान ने कहा कि उसके पास 3 या 4 जगह पर है, और फिर उसने ऐसे मजे में कहा कि अगर हमारी ये भू प्रबंधन भी साथ के साथ हो जाता तो हम तो राजा होते। ठीक है, तो ये 70-75 साल होने को हैं। ये काम शुरू तो हुआ, लेकिन पंजाब में हुआ, हरियाणा में हुआ, वेस्ट यूपी में अच्छा ठीक ठाक हुआ। वेस्ट यूपी में भी 2-2, 3-3 जगह ज़मीनें हैं, लेकिन बहुत सारे राज्यों में स्थिति बहुत ख़राब है। देखिए, जो भूमि की बात है वो इतनी सेंसिटिव है कि उसके बारे में, देखिए, जो ओनरशिप है, हर एक को उसको वो अपनी माँ समझता है भूमि को। हर कोई आदमी जिसकी भी माँ तो पंजाब के लोग भी समझते थे, लेकिन वो हरियाणा के लोग भी समझते है। और ये बहुत ही सेंसिटिव तो है ही, लेकिन इमोशनल इशू भी है मेरी दृष्टि में। तो अगर आप उसको स्वैप करेंगे, इसका आपका तात्पर्य शायद ये भी है कि भाई उसको कंसोलिडेशन होना चाहिए। अगर उसके 5 एकड़ है और 10 जगह होगा तो वो अपना मैनेजमेंट कर पाएगा। इसका मतलब है कि वो जो उसकी कहीं और है तो उससे करेंगे। तो उसमें क्या इशू आते हैं, इसको बहुत, अगर आप इस पे काफी डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, बिल्कुल, और लैंड रिफॉर्म्स पे, तो उसमें क्या है कि सबकी प्रोडक्टिविटी समान नहीं होती है। तो आप तो उसी हिसाब से उसका रेट जो है तय हो जाते हैं। नहीं, तो बात रेट की नहीं है, तो उसके बदले में सपोज मेरी 2 एकड़ यहाँ है, 3 एकड़ 1 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल, तो वो जो चेंज करेगा वो कहेगा भाई मुझे तो ये सहूलियत है ही नहीं, मेरे को तो मेरी ये जमीन है, जिस हर एक को अपनी जमीन वहां पर ज्यादा मिल जाती है। नहीं, ज्यादा कम नहीं, लेकिन वो इक्विवेलेंस फार्मूला क्या होगा, वो बहुत ही पेचीदा सवाल है। एंड उससे लेकिन इस सवाल को हल करना जरूरी है, हल करना जरूरी है, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं, क्योंकि कई किसान जो हैं वो नहीं भी करना चाहते हैं। तो ये हम तो डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हम कोई चाइना नहीं है कि भाई जबरदस्ती आपका। चाइना में क्या होता है, एक लेटर लिख देते हैं, भाई आपकी जमीन हम एक्वायर कर रहे हैं, बस नाउ यू डू दिस। तो हम तो डेमोक्रेसी की ये कीमत तो है ही। लेट अस बी वेरी pragmatic. हमने इसमें कुछ राज्यों में सक्सेस भी हासिल किया। For now, what's important is the key takeaway from the budget today for the agriculture and rural sector has been that there's been an immense thrust on digitization, which of course is clearly the future, and it has contributed significantly to India's growth story. So the world today is looking at India prominently also because our digital growth story has been phenomenal, and this is now being taken across sectors, something that we spoke about, how it's making an impact in the agricultural sector as well. We spoke about supply side incentives, several challenges and possible solutions as well. This is one concern that you raised. Perhaps we'll see some kind of policy measure from the government on this as well in the times to come. But that having been said, I'll have to wind up the program. Time is running out. Thank you, Mr. Yadvendra Mathur, Mr. Prandal Sharma and Mr. Ashok Vishandas for joining us on this telecast and sharing your thoughts with us and our viewers. Absolute pleasure to have you three join us on the program today. And thank you very much, viewers, for your time as well. We'll see you soon with the next telecast on other sector. Do stay tuned to Sunset TV. Goodbye from us. Ramveer and Tina. Namaskar.